where after going through the introductory basic aspects required for the science to perform, keeping in mind that how the technology has come into existence with an aim of serving the mankind with certain products with purity and a durability, effective, cost effective, indeed quantity wise, quality with quantity. That's the main approach. So finally, last day we have demonstrated and gone through those sequential basic steps of biotech in 6 consecutive techniques, one after the other, and each step uses some prominent tools, and those tools are being having their own characteristics. So what should be the follow up? Talking about fDNA, it has got its own characteristics. Now fDNA, it is one of the fundamental device which has to be actually handled actually, but then it is behaving as a tool, because first of all, being fDNA known as foreign DNA, better recognized as alien DNA, or indeed we recognize it as passenger DNA. So let us define fDNA after giving those terms. It is a stretch of DNA. It is a stretch of DNA with gene of interest. It is a stretch of DNA with a gene of interest coding for a trait of desire. And so-called the foreign DNA, simply a stretch of DNA with gene of interest. DNA तो उसका chemical structure है जिसका वो बना होता है, but functionally जब वो अपना काम करता है तो it's basically gene of interest. In what does it mean? Which codes for a trait of desire. Inside an organism of choice called host. So called the host over here is going to be the future GMO, genetically modified organism. And thereafter, chemically, fDNA should be deoxyribonucleic acid, should be double-stranded, can be obtained from prokaryotic or eukaryotic origin, अब ये दोनों पॉइंट्स हालांकि इट्स वेल अंडरस्टूड है कि
डीएनए कह रहे हैं तो केमिकली वो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, लेकिन इस बात को अलग से मेंशन करने के पीछे कुछ कारण होगा। एंड शुड बी डबल स्टैंडर्ड, डुप्लेक्स मोइटी होनी चाहिए उसका। फाइनली वो किसी भी तरह के जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से डिराइव किया जा सकता है, फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक बैकग्राउंड और यूकैरियोटिक बैकग्राउंड। Now, next point, fDNA can be synthesized artificially in laboratory, in vitro. Many times it happens कि gene of interest with a desire, trait of desire बनाने वाला sequence हमें natural source से living world में कहीं नहीं मिल रहा है, and the scientific team has planned whatever trait to be developed, वो एक desire है उस टीम का किसी भी organism के अंदर वो feature आने का, लेकिन उसके लिए कोई sequence जो है as such किसी organism source से नहीं मिल रहा है sampling में, तो then there is no issue that fDNA can be synthesized artificially. हमें enzyme as a tool आज उसमें पता चलेगा कि fDNA को हम artificially भी synthesize कर सकते हैं, because already Hargobind Khurana has developed earlier the technique of producing synthetic DNA. So now the next point is very crucial. Danger sign बना के ऐसे लिखिएगा कि जैसा कि कहा कि हमेशा वो केमिकली डीएनए होना चाहिए, एफडीएनए डबल स्टैंडर्ड। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, इफ द सोर्स ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट is a viral genome, and that too वायरल जीनोम अगर डीएनए है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ इट इज फ्रॉम एन रेट्रोवायरस ग्रुप विथ सिंगल स्ट्रैंडेड सिचुएशन, एसएसआरएनए, वायरल जीनोम एसएसआरएनए, देन नोट, then that situation is being tackled, then fDNA is derived by reverse transcription. Then fDNA is derived by reverse transcription. The product is cDNA. The product is cDNA. cDNA can be utilized as fDNA to construct the rDNA. So now that's all about. Before moving ahead, fDNA as a tool. fDNA as a tool have got these following characteristics: being a passenger DNA, alien DNA, foreign DNA, and moreover, it has an origin. Why it is called alien foreign DNA? That's what I am defining. It has an origin from one genome to be manipulated. फिर इंसान उसमें कुछ चेंजेस लाता है, मैनिपुलेशन, हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस. तो इट हैज एन ओरिजिन फ्रॉम वन जीनोम टू बी मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन.
for expression in other genome. Therefore, it is called alien DNA or indeed foreign DNA for the other genome. जबकि नेचर में उस जीनोम का वो इंटीग्रेटेड हिस्सा नहीं था. That's the stretch of DNA is named as foreign alien DNA. और being passenger है ना, it has the mobile element. अब एनसीईआरटी में इस बात को ऐसे ही रखा गया है. चैप्टर के शुरू शुरू में पैराग्राफ में लिखा है कि व्हाट इज द फेट ऑफ एलियन डीएनए इन द होस्ट बॉडी. सो कॉल्ड, जिसको मैं होस्ट यहां डिफाइन कर चुका हूं पहले, उसके अंदर पहुंचाना हमारा उद्देश्य है. लेकिन नेचर में लेबोरेटरी कंडीशन में उसका क्या भविष्य है, क्या होगा उसके साथ, व्हाट इज द फेट, उसका फ्यूचर क्या है, वेदर इट विल बिकम एन पार्ट ऑफ दैट होस्ट जीनोम, अदर जीनोम, या फिर अंदर एंटर करते से वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, किसी तरह से अपने आप को उसने इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा. तो देयर आर सर्टन इश्यूज. ये जो मुद्दे हैं, इट इज बीइंग एक्चुअली ट्रबल शूट, मतलब इन सबको सॉर्ट आउट करने का तरीका है कि इस एफडीएनए एलियन डीएनए को एक मोबाइल एलिमेंट के साथ एंटरटेन किया जाता है. देयरफॉर इट बिकम्स पैसेंजर, है ना. तो इट हैज द मोबाइल एलिमेंट along with which it moves. पैसेंजर डीएनए का क्या मतलब है, लेकिन वो मोबाइल एलिमेंट खुद क्या है, दैट्स देन अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. वी विल टॉक अबाउट वेक्टर्स लेटर ऑन. तो दिस आर ऑल करेक्ट रिगार्डिंग एफडीएनए. और खास बात जो आखिरी में आया कि इसका जो केमिकल नेचर है वैसा ही होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड. क्योंकि उसको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वायरसेस, आज रिसर्च आगे बढ़ गया है, हम जानते हैं वायरसेस आर नोन फॉर सम डिजास्टर ओनली, दे आर नेवर बेनिफिशियल. लेकिन रिसर्च और सीक्वेंसिंग टेक्निक ने रिवील किया है कि देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ वायरसेस बीइंग वायरुलेंट, है ना, मोस्ट वायरुलेंट, बट स्टिल उनके उस हिस्से को अगर हम मैनिपुलेट कर दें जिससे कि वो अपना वायरुलेंस शो करता है, बाकी उसका जीनोम सीक्वेंस स्ट्रेच पूरा एक हमारे लिए किसी भी तरह का रेमेडी हो सकता है. तो पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे किसी वायरस के जीनोम से अगर हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई कैरेक्टर मिलता है वायरस का, तब उसको हम कैसे एंटरटेन करेंगे, स्पेशली जब वो रेट्रोवायरिडी फैमिली, कौन सी फैमिली, है ना, बिकॉज इट शुड बी ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए नेचर. तो हम किसका क्लासिकल जेनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, नेचर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्ट है, और उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेते हैं, और खुद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को एफडीएनए की तरह इस्तेमाल करते हुए हम आरडीएनए बना सकते हैं. सो द कॉम्पिटिटिव विंडो इज एफडीएनए, सीडीएनए, आरडीएनए, है ना. बेसिक बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हुए आप डीएनए के 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं, ए बी जेड. तो कल ऑप्शंस में उनके साथ भी ऐसा दिया रह सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. सो लेट अस कंपेयर द 3 टर्म्स. एज यूजुअल यू आर अवेयर कि ये है फॉरेन डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, and recombinant DNA.
इसका सिंगल ओरिजिन है, इसका भी सिंगल ओरिजिन है। सिंगल ओरिजिन शब्द का मतलब है एक ही जीनोम से मिला हुआ, नथिंग। जबकि ड्वेल ओरिजिन हाइब्रिड होता है ये डीएनए। दो अलग अलग जीनोम के सीक्वेंसेस को मैच करके बनाया गया है ना। सिंगल ओरिजिन, ड्वेल ओरिजिन, हाइब्रिड। इसको बनाने के लिए, डिराइव करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसको रिसीव करने के लिए हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कौन सा एंजाइम चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, आरडीएनए के लिए हमें चाहिए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज। तो अल्टीमेटली पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक है ना। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, यहां पर, यहां इधर लिख दे रहे हैं cDNA। obtained from any source। सही बात है, इसको हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं ना। लिखा तो हुआ है फ्रॉम प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, किसी भी ओरिजिन से, क्योंकि डीएनए है। जबकि ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेट्रोवायरल ओरिजिन, और यानी दोनों ही नेचुरल है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम लैब में कराएं हमारे एम से, या फिर नेचर में भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो दोनों का ही ओरिजिन क्या है? नेचुरल है। जबकि इसका नेचुरल कैसा है? इन विट्रो। यानी मैं यहां एक्चुअली इन वीवो, ब्रैकेट में इन वीवो, ये दोनों इन वीवो है। अब बोले सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके एफडीएनए को हम अपने डिजायर से, नेचर में भी एंजाइम्स ये मौजूद हैं और किसी के भी जीनोम में ऐसी कटिंग्स चल रहे होते हैं, चाहे हम लैब में करें या अपने आप ये होगा। तो इन वीवो, लेकिन ये तो पूरी तरह इन विट्रो है। ये प्रोडक्ट कैसा है? इन विट्रो, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू मेक अ होस्ट। जो अगला टूल हम पढ़ने जा रहे हैं कि विच इज है ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस। पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस इज कॉल्ड द होस्ट। होस्ट तीन तरह के होते हैं जो कि आपने स्टेप्स में सैंपलिंग में देखा, लेकिन व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट होस्ट इज जिसको हमें टारगेटेड आगे चल के अल्टर कर देना है जेनेटिकली। ठीक है, सो दैट्स द कंपैरिजन ऑफ एफडीएनए, सीडीएनए एंड आरडीएनए। तो आज के क्लास का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक, एफडीएनए is a tool of biotech which has got its own properties, और क्या कंसिडरेशन हमारे रहते हैं उसको डील और हैंडल करने के लिए, और रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। Now the next tool is host, organism of choice, being chosen to genetically alter the genotype and phenotype become
हेट्रोलोगस होस्ट, यानी अल्टर होने के बाद वो हेट्रोलोगस होस्ट बन जाता है विथ आरडीएनए इंटीग्रेटेड, यानी उसके लो हेट्रो मतलब डिफरेंट, कुछ उसके क्रोमोसोम जीनोम कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आ जाता है, एंड नो मोर इट रिमेन्स अ नेचुरल होस्ट ऑफ एनवायरमेंट, एल्स इट्स अ ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस फॉर द ह्यूमन बीइंग, जिसको चुना ही गया है जेनेटिकली अल्टर करने के लिए। और ऐसा होने के बाद मतलब बिकम हेट्रोलोगस होस्ट विथ आरडीएनए integrated in its genome. Can be from prokaryotic and eukaryotic origin. Can be unicellular or multicellular. Definitely. After alteration called GMO या फिर ट्रांसजेनिक, आफ्टर अल्टरेशन called GMO/transgenic. GMF, GMP, GMA. वो ऑर्गेनिज्म बीइंग यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक, ये जो लिखा है वो इन चारों में से कोई भी हो सकता है आफ्टर दैट अल्टरेशन विद दैट आरडीएनए जो इनमें इंटीग्रेट किया गया होगा। अगेन एनसीईआरटी में आज ही देखिएगा आखिरी से तीसरे सेकंड पेज पे जहां प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन करके लिखा है, उसमें हेट्रोलोगस होस्ट की जो डेफिनेशन और एक्चुअल मीनिंग लिखा हुआ है वही मैं यहां पर लिखवा दे रहा हूं कि व्हाट इज अ जीएमओ। तो जीएमओ की डेफिनेशन यहां मैं एक अलग एस्पेक्ट में बताने जा रहा हूं। An organism of interest to be altered genetically, having the ability to, an organism of interest to be altered genetically, having the ability to produce bioproduct, recombinant product या recombinant R प्रोटीन। यानी इस डेफिनेशन में मैं एक्चुअली हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि हमेशा बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में
किसी भी एरिया में वो जो भी सर्विसेज देते हैं रिस्पेक्टिव जीएमओ और ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट बनाकर उसका कोई फिनोटिपिक यानी एक्सप्रेशन ऑफ जीएमओ वो इन फॉर्म ऑफ ट्रेट, इन फॉर्म ऑफ ट्रेट है ना, फिनोटिपिक ट्रेट होगा या फिर इन फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्ट ही होगा। कभी कार्बोहाइड्रेट लिपिड कुछ नहीं हो सकता, है ना, इन फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्ट। जैसे हीरोडिन बना रहे हैं, है ना, निफ जीन्स एक्सप्रेस होके प्लांट का एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा। सेल्फ लाइफ, फ्लेवर टोमेटो, उसने अपना सेल्फ लाइफ, उसमें डिलीशन के अप्रोच से एक प्रॉपर्टी एब्सेंट होके जो एक्सप्रेशन हो रहा है, तो या तो इन फॉर्म ऑफ फिनोटिपिक ट्रेट एक्सप्रेस होगा या फिर कोई प्रोडक्ट भी होगा तो हमेशा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा? नेवर एनी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और एनी अदर बायोमोलिक्यूल। द रीजन इज कि इस साइंस में हम किसको हैंडल कर रहे हैं? जीन। और जेनेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेट होके किस लैंग्वेज में अपना एक्सप्रेशन अपने डिकोड करता है अपने कोडेड लैंग्वेज को? प्रोटीन लैंग्वेज। देयर आर 20 लेटर्स ऑफ प्रोटीन एंड 4 लेटर्स ऑफ जेनेटिक लैंग्वेज। 4 लेटर के लैंग्वेज, जेनेटिक लैंग्वेज को ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेट करते हुए प्रोटीन के 20 लेटर्स के लैंग्वेज जो बनता है, हेंस दिस हैज अ लिमिटेशन। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि वी कैन ऑफर इंसुलिन प्रोडक्शन टू क्या बोलते हैं, ट्रीट, है ना, इन क्या बोलते डायबिटीज मेलिटस, देन व्हाई नॉट एनीमिया कुड बी ट्रीटेड बाय प्रोवाइडिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल स्किल्स। सो पॉइंट टू बी नोटेड, इंसुलिन इज अ प्योर प्रोटीन। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड मतलब हार्मोन है, यस और नो? और अभी अभी जो मैंने बात रखी है कि जिस जीएमओ की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट, और ये सारी प्रॉपर्टीज के साथ वो जब तैयार होता है, एंड फाइनल एस्पेक्ट हम देखेंगे चैप्टर में, बट उसमें एबिलिटी जिस बायो प्रोडक्ट को लेके है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जिस होस्ट से बनवाते हैं नेचर में वो एबिलिटी उसके जीनोम का हिस्सा तो था ही नहीं, उसमें तो इंटीग्रेट कराया गया इंसान के द्वारा, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस है। बेटर हैंडलिंग, उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, जो भी सब बातों को हम ध्यान में रखें, तो उसका प्रोडक्ट भी रिकॉम्बिनेंट है। उसमें जो भी एनहांस करके एफिशिएंसी के साथ बनाता है, सब इंसानी डिजायर का, विल का हिस्सा है, तो वो हमेशा एक प्रोटीन प्रोडक्ट होता है। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्ट देने वाले ऐसे जेनेटिकली अल्टर्ड होस्ट को ही हम हेट्रोलोगस होस्ट कहते हैं। नाउ दैट्स द डेफिनेशन गिवन इन द एनसीईआरटी। नाउ कम्स टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? उसका ग्लोबुलिन पार्ट, ग्लोबिन तो हम बना सकते हैं, बट देयर इज नो केमिकल इंजीनियरिंग साइंस टिल डेट डेवलप्ड which can generate and construct assemble heme। हीम बना भी लेंगे तो हीम और प्रोटीन को कैसे जोड़ेंगे, एक नॉन प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट को? तो दैट्स द टेक्निकल लिमिटेशन। तो अलाइक इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजिकल स्किल्स, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कुड नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ऑप्शंस, या ऐसा किसी और प्रोडक्ट का नाम। तो उसमें मेन बात यही है ना, जैसे क्लोरोफिल हो गया ये, तो फिर हम प्लांट्स भी सिंथेटिक प्लांट्स बनाना चालू कर देते। तो रिसर्च तो चल रहा है, लेकिन जिस दिन साइंस डेवलप होगा उस दिन देखेंगे, उस दिन दावा होगा, आंसर विल चेंज। अभी फिलहाल जैसे एप्लीकेशन में एक जगह है कि ओरल थेरेपी ऑफ इंसुलिन इज नॉट पॉसिबल, यू गॉट हैव रीजंस, लेकिन चल रहा है रिसर्च, एक दिन वो भी संभव हो जाएगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो आज जैसी दुनिया है आगे वैसी ही रहेगा, और थिंग्स विल, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन चीज है, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें अभी भी नहीं पता। वो तो चल रहा है, 200 साल बाद हो रहा है, अभी रिसर्च होता है। कोई भी रिसर्च होते होते 15-20 साल ऐसी बीत जाते हैं, फिर उसके एप्लीकेशंस करते करते, फील्ड से रिपोर्ट्स लेते लेते, बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट करने के बाद जाके प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो इट टेक्स एन एटलीस्ट 3 to 4 डिकेड्स किसी प्रोडक्ट को मार्केट में एक्चुअली सक्सेसफुली एक्सेप्शन के साथ लाने में, कम से कम 3-4 डिकेड यानी 30-40 साल लग जाते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें जो बात गौर करने वाली बात है
कि जो कल अल्टीमेटली जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं होस्ट से, वो जीएमओ की तरह जब भी अपना एक्सप्रेशन करेगा, है ना, इंडस्ट्री को दो तरह से सर्व करेगा। अगर कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कर रहा है जिसमें उस ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल, फंगस, उसके किसी कैरेक्टर को हमने अल्टर किया, तो हमें उससे उसको क्या फायदा मिल रहा है उससे मतलब नहीं, उसके उस एक्सप्रेशन के बाद हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि जिसमें भी हमने किया है वो ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस है, वो एक कमर्शियली सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ब्रीड था जिसको ट्रेडिशनली ट्रीटमेंट ना देके हमने हाइब्रिड साइंस, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अवर डिस्कशन मॉडर्न बायोटेक। या फिर उसका शरीर को हम एक इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, दैट्स अप्रोच इन द एप्लीकेशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मिंग। क्या कहते हैं, बस एक टर्म लिख रहा हूं मैं यहां पर, अभी मत लिखिएगा। सही बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर को अगर मैं किसी केमिकल प्रोडक्ट, बायोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इट्स सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मिंग, है ना। ट्रांसजेनिक काउ रोजी, उसका मिल्क नेचुरल कंपोजिशन से ट्रांसजेनिक बनने से पहले वो एक नॉर्मल ब्रीड का गाय था, और उसके मिल्क की कंपोजिशन जैसी भी थी नेचुरली उसके खुद के अपने काफ के लिए था। आ रहा है समझ में? नाउ दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग इन फिजियोलॉजी। लैक्टेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल मैमल्स टू ऑफर फीड टू द न्यूबॉर्न। नेचर ने ये तय किया, लेकिन इंसान ने आज क्या करने की कोशिश की, हस्तक्षेप, मैनिपुलेशन। विथ एन व्हाट इंटेंशन, क्या डिजायर आया, क्या डिमांड आया कि दोज चिल्ड्रन अमंग ह्यूमन कम्युनिटी हु गेट डिप्राइव ऑफ मदर मिल्क, बच्चे के बर्थ के बाद मदर की डेथ हो गई, या फिर लैक्टेशन नहीं हुआ, मिल्क नहीं बना, मिल्क बना लेकिन इट इज नॉट ड्रेन डाउन, क्योंकि मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण। मेनी सच सिचुएशंस अराइज। या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, मिल्क अंदर ही जो है ड्राई होके सिस्ट बन गया है, ऑपरेशन होता है, तो अब अगले 2-3 महीने तक तो जो ऑपरेशन से रिकवर करने में लग जाएगा, तो प्रायर मिल्क क्या बोलते, फीडिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे बच्चों को अर्लियर क्या करते थे, या तो वो भूख से मर जाते थे ट्रेडिशनल, या फिर वही है बीइंग केप्ट ऑन अदर टाइप ऑफ मिल्क, डाइल्यूट कर करके बकरी का और गाय के दूध पिला के, या फिर उसी समय के। नाउ दिस इज समथिंग सोशल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अगर घर में जॉइंट फैमिली है, एक ही उम्र के दो फीमेल्स मदरहुड से गुजरे हो कोइंसिडेंटली, तो दूसरे मदर के मिल्क पे है, तो वो तो जॉइंट फैमिली में है। लेकिन हमेशा कोई भी चीज है, हम बात करते हैं पहले का क्या जमाना था, क्या अपब्रिंगिंग्स थी और क्या माहौल था, उस समय किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते थे, और आज का माहौल क्या है, आज की सोसाइटी कैसी है, और आज के क्या डिमांड्स और डिजायर है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो मेनी सच थिंग्स। तो अब इंसान के दूध की कॉम्पोजिशन हम किसी और के शरीर में, नाउ दिस इज द अप्रोच ऑफ बायोटेक। लैक्टा एल्बुमिन अल्फा 1 अल्फा लेक्टा एल्बुमिन जो मेन प्रोटीन होता है मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में, उस प्रोटीन की वजह से मिल्क की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि 6 महीने तक बच्चे को बाहर के एक्सटर्नल किसी भी तरह के वाटर इंटेक की जरूरत नहीं है। एल्बुमिन नाम सुनती सी तुम समझ गए, लेक्टा मतलब मिल्क में। तो जितना पानी उसके शरीर में बच्चे में बनता है, और प्लस मिल्क में मौजूद वाटर को रिटेन करना शरीर में, जिससे बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। So mother milk by different aspect act as one of the most complete diet for those newborns for the first 6 months due to all these compositions. तो ये सारा ह्यूमन मिल्क कंपोजिशन हम किस में लाना चाह रहे हैं, एक और दूसरा ऑर्गेनिज्म में, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर को एक मॉलिक्यूल, एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया। अब उसके शरीर में मिल्क तो बन रहा है, लेकिन उस मिल्क की कंपोजिशन अब उसके नेचुरल बछड़े के लिए नहीं है, काफ के लिए नहीं है, बल्कि इंसान उसको एक्सट्रैक्ट करेगा कमर्शियली। सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? तो ऐसे डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट सच एग्जांपल्स इन द एप्लीकेशन। तो ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मिंग। हिरुडिन प्रोडक्शन, हम अगर ब्रेसिका नेपस एक प्लांट होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो किसी भी प्लांट के अंदर हम, या किसी भी एनिमल बॉडी में हम इस तरह का इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, सिंपली मॉलिक्यूलर। ई कोलाई, एक्सचेरिशिया कोलाई, उनको तो हार्मोन की जरूरत ही नहीं है, वो क्यों इंसुलिन बनाने लगा नेचर में? लेकिन वो बना रहा है और बनाकर प्रोडक्ट को बाहर फेंक दे रहा है, क्योंकि उसके लिए वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। फिलहाल उसने बनाया और किया, वो सब हमारे लिए मॉलिक्यूलर फार्मिंग था। फार्मिंग वर्ड समझ में आ रहा है सबको? फार्मा मतलब इट्स यूज्ड टू बी एज अ मेडिसिन टू ट्रीट एंड सम एलिमेंट, सम डेफिशिएंसीज को खत्म करना। सबको ये कंसेप्ट आया समझ में अच्छे से, क्लियरली? अच्छा, ये तो वो बातें हो गई होस्ट से रिलेटेड जो हमारा टारगेट है, ठीक है। लेकिन ये सब करने के लिए
जो पहले लिखवाया वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को होस्ट की तरह डिफाइन करते हुए जिसके साथ हम क्या करेंगे और क्या हासिल करेंगे। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस बनने के लिए उसके कुछ आइडियल और यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो whose genome is well understood। लॉजिक को समझिए, जिस बात को मैंने अभी भी स्टेटमेंट दिया इसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखवाया जा सकता है। मैं सीधा सीधा टू द पॉइंट मुद्दे पे पहुंच गया। द फर्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी इज कि हमें क्या करना है, आरडीएनए इंटीग्रेट करना है उसके जीनोम में। तो हमें पूरा एक नॉलेज होना चाहिए कि उसका जीनोम कैसे क्या है, कहाँ कहाँ एरियाज हैं जहां हम किसी तरह का डिस्टर्बेंस करेंगे तो उसके वाइटल एक्टिविटीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली देयर माइट बी सम इंट्रॉन्स, सम सीक्वेंसेस जो बस अनड्यू स्ट्रक्चरली मौजूद है, उनको अगर डिस्टर्ब करके हम अपना क्लोनिंग साइट भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो नॉलेज होना, और ऐसा करते समय वाकई में हम कर पाएंगे कि नहीं, इसके लिए हमारे पास अवेलेबल जो टूल्स एंजाइम्स के फॉर्म में है वो उस होस्ट में काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको कोई इंटरफेयर तो नहीं करेगा। तो इन सब बातों को ही हम लिखने जा रहे हैं। तो हुज जीनोम इज वेल अंडरस्टूड, इजीली अवेलेबल, है ना, वेल हैंडल्ड इन लेबोरेटरी कंडीशन। सही बात है ना, ग्रोथ कराने में, हैंडल करने में एज सच, है ना, शुड बी नॉन वायरुलेंट, शुड बी should be able to uptake and integrate the rDNA। मतलब उसमें नेचुरल एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। इस एबिलिटी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाना। क्या हो जाना? ट्रांसफॉर्मेशन। नेचर में लाखों में कोई एक बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन हो तो मतलब एबिलिटी स्ट्रेन में, बाकी एक नहीं फिर तो 500 1000 भी होंगे, क्योंकि हम उसको ऐसा कंडीशन देंगे लेबोरेटरी में, क्योंकि ये तो मैनिपुलेटेड हैंडल्ड वर्क है। तो जीनोम इज वेल अंडरस्टूड, इजीली अवेलेबल, है ना, वेल हैंडल्ड इन द लेबोरेटरी विद ग्रोथ कंडीशन, शुड बी नॉन वायरुलेंट, शुड बी, और अगर वायरुलेंट होता भी तो आज हम उसको नॉन वायरुलेंट बना लेते हैं। शुड बी एबल टू अपटेक एंड इंटीग्रेट द rDNA। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, the host cell cytoplasm should lack all factors। उसके साइटोप्लाज्म में ऐसे सारे फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। मतलब द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म शुड लैक ऑल फैक्टर्स विच मे इंटरफेयर with expression of fDNA। So that's a feature what we call idealism of an host of becoming organism of choice। तो सैम्पलिंग स्टेप जो मैंने आपको सबसे पहला बताया था एज अ टेक्निक्स ऑफ या बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक, द टीम ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट, जो भी जिस कैटेगरी में है ना, माइकोलॉजिस्ट, फंगस के एक्सपर्ट्स, है ना, उनको पता है कि मॉर्फोलॉजिकली ये है, फलाने एरियाज में ऐसे 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 वर्कआउट करके उनका काम है ये सारे हर्डल्स पहले से ही क्लियर कर लेना और फिर अगले टीम को सौंपना, जिससे कि फिर वो आगे काम को बढ़ाए, डीएनए आइसोलेशन करे। तो ये सब चीजें चेक करने के बाद, और अगर ऐसा नहीं है बट देन ऑल्सो उसके, क्योंकि सारे फीचर्स एक ही होस्ट में एक साथ मौजूद हो ये नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां रही जाती है। सो नोट, if above properties are not completely
present, then अगर ये मेंशन सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आपको कंप्लीटली नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो होस्ट ही एकमात्र जरिया है उस पर वर्कआउट करना है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उसमें बेहतर है और हमें वही चाहिए पहले। वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन में कॉस्ट कम हो जाएगा, ग्रोथ मेंटेनेंस आसान है, बस कुछ फैक्टर्स उसमें है जो तकलीफ या ट्रबल शूट कर सकता है आगे चल के। तो इफ एवर प्रॉपर्टीज आर नॉट कंप्लीटली प्रेजेंट, देन competence method by physical and chemical treatment now that's the question oriented point from the chapter। अब ये आपका थोड़ा सा होमवर्क रहेगा, भले ही मैं एक सीक्वेंस से अपने सीक्वेंस से चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, बट एनसीईआरटी में सारी बातें इधर उधर डिस्क्रीट फैला हुआ है हर टॉपिक्स की तरह। ये टॉपिक, ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही है लेकिन बिल्कुल सिस्टमैटिक, कोई भी पॉइंट कुछ कहीं गलत नहीं लिखा है। 12th क्लास के लिटरेचर में कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है, ना कोई डायग्राम गलत है ना कुछ। अरे आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं कि नहीं आने के चक्कर में कुछ भी बोल दिया कि अरे ये गलत लिखा है। अरे आ रही मेरी बात समझ में? आज आपको जेनेटिक्स की बुकलेट मिली है, अप टू डेट है, और चैप्टर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो पैराग्राफ बिल्कुल बहुत सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है। आई एम थैंकफुल टू एनसीईआरटी, द बोर्ड, एडिटोरियल बोर्ड, दोज प्रोफेसर्स एंड नॉलेजेबल पर्सन जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीके से प्रिसाइज ब्रीफिंग के साथ लिखा है विदाउट एनी एरर। उसमें जो भी लिखा है सबका एक एक मीनिंग है। सबको आ रही मेरी बात समझ में? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, म्यूटेशन 0.01 रेट से कैसे जनरेशन टू जनरेशन 4th जनरेशन में पास होता है, यहां तक का अगर एनसीईआरटी में वो बात लिखा हुआ है तो आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि वही एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। सबको आ रहा है समझ में? क्योंकि लेबोरेटरी में जब उसको समझाया सिखाया जाता है, हर कोई नहीं समझ पाता कि कैसे एक्चुअली कोडिंग किया गया और कैसे हम एक्चुअली जज कर लेते हैं। वो तो थ्योरेटिकली क्लास में बैंड पैटर्न से समझा देते हैं कि मदर फादर से देखो ये, लेकिन एक्चुअल जब करने जाते हैं थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब है कि चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी आपको मैंने इसलिए एक सिनॉप्सिस है, हालांकि मैंने हर टॉपिक हर चैप्टर का सिनॉप्सिस पहले हमेशा लिखवा देता हूं। सिर्फ 2 ही टॉपिक्स है जिनको मैंने रैंडम पढ़ाया, एक ह्यूमन हेल्थ डिजीज और दूसरा एनिमल ब्रीडिंग। द रीजन इज वो टॉपिक ही ऐसा है, इंडिपेंडेंट कहीं से भी पढ़ना चालू करो, अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, याद करना है आपको मेनली। लेकिन थ्रू आउट बाकी सब टॉपिक्स एक सीक्वेंस में ही पढ़ाया जाएगा, एक सिनॉप्सिस बताते हुए पहले। तो पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा कि सबको इस चैप्टर का सीक्वेंस क्लियर है? बिल्कुल पहले दिन जो सिनॉप्सिस लिखवा दिया है, थोड़ा सा घर से रोज एक बार रीडिंग करके आए। तो ये जो बात मैं होस्ट के साथ बताने जा रहा हूं आपको, एक्चुअली यही तो है। होस्ट पहले पूरी तरह से, एफडीएनए तो अपनी जगह है, उसकी कमियों को हम बाय ट्रिमिंग एंजाइम से दूर कर सकते हैं, कुछ कम है, ज्यादा कट गया हो गया तो फिर दोबारा बना लेंगे एफडीएनए की प्रॉपर्टीज। लेकिन होस्ट अगर दिक्कत पैदा कर दे आगे चल के तो वो बड़ा ही नुकसानदायक होता है स्टेप में। तो हेंस पहले से तैयारी कर लेते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम उसको लायक बना देते हैं अगर उसमें कुछ कमी है। कॉम्पिटेंस मतलब ही किसी भी काम को करने लायक बन जाना। तो if ever properties are not completely assembled, competence method, host competence method by physical and chemical treatment is done। अब बाकी देख लेंगे आगे चल के व्हाट इज दैट कॉम्पिटेंस और वो फिजिकल केमिकल तरीके क्या क्या है ना। जब आरडीएनए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उससे पहले पहले होस्ट कॉम्पिटेंस पढ़ाऊंगा, फिर डीएनए 2 तरह से एंटर आरडीएनए किया जाता है, वेक्टर के साथ या बिना वेक्टर के। बिना वेक्टर के 4 मेथड पढ़ेंगे, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोफोरेशन मेथड, जीन गन, बोलिस्टिक जीन गन मेथड। आ रहा है समझ में एवरीवन? है ना। So that was all about the host. Now the next tool in sequence is about enzymes. Give the heading enzymes.
अब इंडिविजुअली एक एक एंजाइम पे बात करने से पहले फाइनली एग्जाम के लिए रिवीजन कैसे करोगे? Technical description. Now you are going to experience 5 category of enzymes over here. Lysing enzymes, to be used in isolation of DNA. To be used in isolation of alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase. गौर करिएगा क्या लिख रहा हूं. To be used at restriction digestion. Now that's a challenging statement क्योंकि restriction digestion के लिए तो खुद restriction enzymes available है. लेकिन पॉइंट अब इसलिए तो मैंने बेसिक स्टेप्स पहले लिखवा दिया कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज द स्टेटमेंट कि कब और क्यों ऐड किया जाता है, विथ व्हाट एम. तो ये है एंजाइम, लेकिन इसको इस्तेमाल ठीक टू बी यूज्ड एट रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन स्टेप ऑन किस पर? प्लाज्मिड सैंपल ऑन to be used at restriction digestion step on plasmid sample. Ligase, DNA ligase to integrate fDNA and vector DNA by ligation. Synthesizing enzyme है ना, सिंथेसाइजिंग एंजाइम. ये एक एडिशनल एंजाइम बता दे रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट सिंथेटिक एफडीएनए. And at last, restriction enzymes to conduct cleaving of fDNA from any DNA source. Now this is a brief explanation of the complete series and sequence of enzymes which are most prominently utilized in any biotech lab to perform the work. But NCERT में इन तीनों के बारे में अलग अलग जगह डिस्कस्ड है. अब जैसे लाइजिंग एंजाइम्स डीएनए आइसोलेशन स्टेप में वहां भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक अलग से इनके बारे में. आज के बाद लाइजिंग एंजाइम्स का कोई क्वेश्चन आया कैसे क्या? ligation step rDNA कंस्ट्रक्ट करना to integrate fDNA rDNA by ligation to form rDNA. है ना, मैं सबके बारे में लिखाऊंगा, लेकिन एक प्रोमिनेंट लास्ट है ना एंड पे टच कर दा. और now I would like to share a discussion with you that पूरा बायोटेक यूनिट 2 चैप्टर्स है, आपको ऐसे पढ़ा देने की मेरी कोशिश है कि फाइनल डे से पहले अगर रिवाइज ना भी करके जाओ तो यू डू नॉट बी पैनिक कि बायोटेक रिवाइज करने का मौका नहीं मिला. ये टॉपिक ही ऐसा है कि अभी पढ़ते हुए ही पूरा याद हो जाना चाहिए.
क्वेश्चंस लगा लगा के अगले 15 दिन में बस दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आने हैं, नहीं आएंगे 2 आएंगे, एक ही आएगा, तो वो क्या आ सकता है। आप रोज सिनॉप्सिस देखो ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आ गया, पीसीआर का कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसे सोचो डीएनए आइसोलेशन के बारे में क्या सही है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग डीएनए आइसोलेशन, एक सीक्वेंसेस लिखे होंगे, यस और नो, ऐसे सोचो ना आप। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? या फिर एंजाइम्स कैटेगरी से क्वेश्चन आ जाए, खुद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मोस्ट प्रॉमिसिंग क्वेश्चन फॉर्मेट फॉर्मिंग पैटर्न ऑफ द चैप्टर, क्या उसका नॉमेनक्लेचर रूल्स है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 5% आपको जो याद करना है, लर्निंग है, वो है एंजाइम्स के नाम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम, सीक्वेंसेस, और वो किस बैक्टीरिया से डिराइव्ड है। क्योंकि सिर्फ इतना से ये क्वेश्चन टैबलेट पैटर्न से आ गया तो वो तुम्हारे इंटेलिजेंस से सॉल्व नहीं होगा। वो तो 10 एक नाम आप याद कर लो बैठ के एक दिन आराम से, 15 नाम, जिन जिन किताबों से भी आपको सीक्वेंस मिल जाए। 2-3 तो चलो मैं बता दूंगा, लेकिन सबको आ रहा है समझ में? बाकी सब कंसेप्चुअल है, लिटरेचर बेस्ड, लैंग्वेज, क्या एफडीएनए है, क्या आरडीएनए है। सीडीएनए से आरडीएनए बन सकता है, लेकिन आरडीएनए से सीडीएनए नहीं बन सकता। मतलब व्हाट इज करेक्ट अबाउट इट? एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब आज का कंक्लूजन क्या होगा क्लास के लेक्चर का? एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजेस वन रेस्ट्रिक्शन साइट एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। कोडॉन्स की तरह नहीं कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा, सॉरी क्या बोलते हैं, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है, यस और नो? क्योंकि सी द रिलेशन 20 और कहाँ 64, जिनमें से भी 61, क्योंकि 3 तो जो है टर्मिनेशन कोडॉन है, क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अलग अलग चैप्टर से ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं थोड़े से मतलब चैलेंजिंग स्टेटमेंट, क्योंकि ऑल fertilizations are result of successful copulation, but all copulation may not lead to successful fertilization। आ रहा है सबको समझ में? ये मैं ओवरी पढ़ाते हुए समझा चुका हूं, पूरा ग्राफ बना के सब कुछ। oogenesis उस चैप्टर का जो मेजर 25% हिस्सा है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका वो हिस्सा तो मैं टेस्टिस ओवरीज के साथ ही पढ़ा चुका हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेन जो है एमटीपी और सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, वो सब वहीं डेमोन्स्ट्रेट हो चुका था। बट व्हेन वी विल कम टू दी चैप्टर, एक प्रायर रिवीजन भी हो जाएगा और रेफरेंस में कुछ और एक्स्ट्रा बातें। तो मेरा कहने का मतलब है ये पूरा चैप्टर ऐसा है, ये 2 चैप्टर्स आपको लास्ट एंड मौके पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, 12th पोजीशन से बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ये अच्छे से तैयार रखो, ये आखिरी में नहीं देख के जाना पड़े, अभी से ही पढ़ पढ़ के सारे डिजीजेस के नाम, साइकिल्स, ये वो, क्योंकि उससे 6 क्वेश्चन आने हैं ऐसे सोच के। एक क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी का, उसमें करना क्या, सारे सेंचुरीज के नाम जो बुकलेट मिलेगा उसमें सब लिखा हुआ है, बस याद करना है। तो रोज 2-2 मिनट 15 मिनट अपने फुर्सत के पलों से फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा समय निकाल के बस कि कहाँ शेर को पाल रहे हैं, कहाँ हाथी को पाल रहे हैं, मतलब वही कहाँ किसको कंजर्वेशन दिया जा रहा है। अरे आ रहा है समझ में? तो उस चैप्टर का नेचर वैसे ही है, वही क्वेश्चन आएंगे, किस संस्था ने क्या बनाया, क्या नियम बताए, है ना, सारे इंस्टीट्यूशनल के नाम और वो सब उनके फुल फॉर्म्स चैप्टर बाय। हाँ, उसमें 20% लॉजिकल क्वेश्चन कहाँ से है, व्हाट इज दैट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कैसे समझाया, जेड वैल्यू क्या होता है, कम ज्यादा होने पे क्या असर पड़ेगा, किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट कब कहा जाता है, ट्रॉपिक एरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है ना, एक पहाड़ी इलाका और एक प्लेन है, एक्स एंड वाई एरिया, है ना, व्हाट इज द डेविएशन ऑफ डाइवर्सिटी इन एक्स एंड वाई, 3 अलग ग्राफ बने, मतलब एक क्वेश्चन आना है, पैटर्न ये तय हो गया बस। इसके अलावा अब एनसीईआरटी से देख देख के कौन कौन से एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहाँ कहाँ है, क्वागा, डोडो, अरे आ रहा है समझ में? अरे लो, खत्म चैप्टर। अब आ रहा है समझ में? अरे वो तो मैं 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि बस फिर तो खत्म ही हो जाओगे एक दिन। लेकिन अगर सीरियसली टॉकिंग अबाउट तो यही है क्वेश्चंस। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज इवल क्वाड्रेट, व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। 5 मेजर एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं टिल डेट, बट दे वेर ऑल नेचुरल। लेकिन 6th एक्सटिंक्शन भविष्य में प्रलय जो होगा वो इंसानी एक्टिविटीज की वजह से होगा, विच विल बी मोर डिजास्टर्स 1000 टाइम्स। एंड द 4 रीजंस आर, वही 4 ऐसे इवल क्वाड्रेट चैप्टर की, यही मेन क्वेश्चंस है। फिलहाल लेट अस कम बैक टू द डिस्कशन। पहले सबको ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ गया?
group of lytic enzymes to be used in DNA isolation with purity. सही बात है. ग्रुप ऑफ लाइटिक एंजाइम्स, ऐसे लाइटिक एंजाइम्स जिनका इस्तेमाल डीएनए आइसोलेशन में होता है विथ प्यूरिटी. ये बात डेफिनेशन में रहना चाहिए. एंड टाइप ऑफ एंजाइम to be used depends on host cell. तो क्यों ना क्वेश्चन बना लिया जाए, होस्ट सेल और एंजाइम्स, लाइजिंग एंजाइम्स. अगर बैक्टीरिया है the enzyme to be used is lysozyme. अगर एनिमल सेल है तो प्रोटीएज प्लस लिपेज, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, दे हैव दैट केमिकल नेचर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन. एंड इफ इट इज द प्लांट सेल then cellulase. It is the host from which the FDNA is going to be derived, जिससे हमें FDNA पाना है. अगर वो एक फंगस है so it's simply use of chitinase. तो यहीं के यहीं नॉलेज क्लाउड though enzymes are available, still centrifugation, enzymes हैं फिर भी, है ना, DNA isolation step में are available, still centrifugation is used in DNA isolation because and that is the technical question. Lysing enzymes are a group of those enzymes जो कि डीएनए आइसोलेशन के लिए स्टेप में इस्तेमाल होते हैं टेक्निक में. और किस तरह का एंजाइम इस्तेमाल होगा, ये होस्ट सेल, उसके नेचर पे, सेल वॉल तोड़ना है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, है ना, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और फंगस, अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट है. एंजाइम्स होने के बावजूद भी जब डीएनए आइसोलेशन पढ़ेंगे अगले क्लास में, व्हाट इज यू विल एक्सपेक्ट एंड कम अक्रॉस, कि उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल होता है. कारण क्या है? टू गेन प्यूरिटी, पहला कारण ये है, और टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ टेक्निक, क्योंकि एंजाइम महंगे हैं, इनका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और कर भी लिया तो पैसा तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन प्यूरिटी के साथ डीएनए नहीं मिलेगा. इसलिए सेंट्रीफ्यूगेशन साथ में चलता है सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे, जिससे कि आखिरी तक प्यूरिटी मेंटेन रहती है. तो वो बात तो टेक्निक में ही समझाऊंगा मैं कैसे. फिलहाल ये टेक्निकल क्वेश्चन था कि एंजाइम्स के होने के अलावा भी इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन. रेस्ट आखिरी में स्पूलिंग करते हैं. तो वही पूरे स्टेप्स ऑफ डीएनए आइसोलेशन में 5 स्टेप्स बताएंगे, वो सीक्वेंस में ऐसे याद रहना चाहिए. दैट वाज अबाउट लाइजिंग एंजाइम्स. Next is alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase.
ये तो अब पता चल गया कि ये कब इस्तेमाल होता है, बस यहां बस इतना लिख के रखे, प्रिवेंट द recircularization of restricted plasmid by eliminating है ना the phosphate group. It prevents the recircularization of the restricted plasmid by eliminating the phosphate group at 5' end of the strand. ये उसका काम है. Synthesizing enzymes to construct the synthetic fDNA by what are those enzymes? एक तो आपके सारे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल 1 2 3, और दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना. सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बनाएंगे सिंथेटिक एफडीएनए, है ना, इन विट्रो, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से cDNA फ्रॉम वायरल जीनोम. It is a molecular glue, rather called bioadhesive DNA ligase, है ना. It's a molecular glue bioadhesive. Utilized for ligation ऑब्लिक, जिसे हम स्प्लाइसिंग भी कहते हैं. Utilized for ligation oblique splicing. It reconstructs the phosphodiester bond. It reconstructs the phosphodiester bond to form rDNA.
The most popular commercially available DNA ligase is T4 DNA ligase. सबसे कॉमनली दूसरे बैक्टीरिया वगैरह से मिलते हैं, बस उनकी एफिशिएंसी कम है. सबसे ज्यादा एफिशिएंट डीएनए लाइगेज जो माना गया है फ्रॉम अ वायरस, है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, दैट इज T4 बैक्टीरियोफेज, उससे डिराइव्ड है. तो इन 1969 Hargobind Khurana discovered that T4 DNA ligase from T4 lambda phage bacteria virus, T4 lambda phage.
So the next topic in target to understand is restriction enzymes. But actually coming to restriction enzymes, what they are basically, we have been beginning that discussion under the heading of cleaving enzymes. So what has been observed in nature? There are a group of enzymes naturally present in both prokaryotes as well as eukaryotic cells, having the ability to cut down, है ना, chopping कर देना एक तरह से, cut down nucleic acid chain, और altogether since they act on nucleic acid called nucleases, और उनके nature of work के चलते हुए उनको हम cleaving enzymes कह सकते हैं. They are present at cellular level to offer defense system. Actually nature में वो क्यों मौजूद है? They are present at cellular level within the cell to offer defense. किसको डिफेंस देना? सेल अपने आप को. लेकिन क्या डिफेंड करना चाहता है वो? अपने किस चीज को बचाना चाहता है? टू ऑफर डिफेंस टू इट्स जीनोम इंटीग्रिटी. जीनोम इंटीग्रिटी मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस जनरेट होते हैं जिसमें उसका जीनोम ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसअसेंबल हो जाएगा, और अगर ऐसा डिसमेंटल हो जाता है तो वहीं वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका कंट्रोल खत्म है, उसका मेन मास्टर मॉलिक्यूल ही डिस्टर्ब हो चुका है. तो ऐसे सिचुएशन दो कारणों से होता है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल, या तो खुद अपने आप ही जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, या फिर बाहर से कोई फैक्टर आ जाए, कोई दूसरा डीएनए पार्टिकल आ जाए और उसका हिस्सा बनने की कोशिश करे, तो उसके सीक्वेंसेस डेफिनेटली गड़बड़ाएंगे. तो दोनों ही सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक्चुअली ये एंजाइम्स हैं, कटिंग एंजाइम्स जो है, दे आर ओवर देयर एज अ वे टू डिफेंड, एक तरह से डिफेंस देना अपने आप को एट सेल लेवल. सेल अपने आप को बचाता है, तो दे आर प्रेजेंट एट सेलुलर लेवल टू ऑफर डिफेंस टू इट्स जीनोम इंटीग्रिटी. by two ways. यानी एक तो सिचुएशन क्या जनरेट होता है? डीएनए कॉपी एरर. डीएनए स्पॉन्टेनियस कुछ नहीं, डीएनए है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, अपनी कॉपीज तैयार करता है. उस समय है ना गलत कॉपी हो गया, गलत सीक्वेंस चले गए. अब ऐसी गलतियां तो होगी भाई, जहां 10,000 बेसेस कॉपी हो रही है एक बार में, है ना, तो 10,000 में एक दो बेस गलत, या कोई 10 बेस अलग अलग जगह पे, 10,000 बेस पेयर की लंबाई में 10 जगह एक एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर गलत सीक्वेंस में आ गया होगा एनफ, तो दैट्स एनफ टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. फ्रेम शिफ्ट और जिस तरह का भी डिलीशन, एडिशन, सब जेनेटिक्स में पढ़ोगे, म्यूटेशंस में. तो इतनी गलती हम मान के चलते हैं होगा, कोई बात नहीं है. उस कॉपी एरर को डीएनए रिपेयर सिस्टम किससे ठीक कर देंगे? याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कैंसर पढ़ा था, उसमें मैंने P53 प्रोटीन की बात कही थी. G1 से S में एंटर तभी करेगा कि किसी भी तरह का कॉपी एरर हुआ है तो पहले सब कुछ रेक्टिफाई कर ले, अगले फेस में तभी एंटर करेंगे. तो समय समय पे चलता रहता है, क्योंकि ये गलती होना लाजमी है. मतलब मैंने अगर कोई पर्टिकुलर एक राइटअप लिख के दे दिया है, ऑपरेटर ने ऑपरेट कर, उसका स्पीड है, उसके ही इज अ टेक्नीशियन ऑफ प्रिंटिंग इट, टाइपिंग इट. 70 वर्ड 60 वर्ड पर मिनट से वो टाइप किए ही जा रहा है, देख देख के इस तरफ, वो अपना काम सही कर रहा है. लेकिन 70 शब्द लिखे, 70 शब्द में अगर 3 शब्द स्पेलिंग मिस्टेक निकल भी गए तो इसको हम इनकॉम्पिटेंट थोड़ी मानेंगे. वो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, प्रूफ रीडिंग. लेकिन मान के चलो इनएफिशिएंसी कहाँ कि 70 शब्द लिखे, 40 ही गलत, है ना, 20-25 गलत, मतलब चलो 40 तो ज्यादा बोल दिए, है ना, फिर तो दोबारा ही टाइप करना ठीक रहेगा. लेकिन अगर एनीथिंग 10 वर्ड्स गलत हो गए, मतलब फिर उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, तब जाके आप कोई प्रोफेशनल पोजीशन पे जाके टाइपराइटिंग का काम कर सकते हो.
जिस दिन 70 शब्द की स्पीड और 70 में से मैक्सिमम 5 वर्ड आपके गलत चले गए तो मान के चलेंगे इट्स ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट, क्योंकि प्रूफ रीडिंग होती है। ये तो 3 इडियट्स जैसे कंडीशन हो जाएंगे, अरे सबको आ रहा है समझ में, है ना, मिस रीडिंग, फिर गलत ट्रांसक्राइब, आगे भी वो गलत जाएगा। तो ये भी तो जीनोम इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाला कंडीशन है, सबको आया समझ में। और दूसरा है फॉरेन डीएनए इंटीग्रेशन। सही बात है, बाहर से कोई डीएनए, नेकेड डीएनए, बैक्टीरिया हो या कोई भी बॉडी का सेल हो, वायरल अटैक होते हैं। तो याद करिए अभी अभी कुछ समय पहले आपने इम्यूनिटी पढ़ा, इम्यूनिटी में इंटरफेरॉन्स पढ़ा। इंटरफेरॉन्स रिलीज होकर या तो वो आसपास अलार्मिंग करते हैं जिससे सारे आसपास के सेल्स अपने रिसेप्टर से छुपा ले, नहीं छुपा सकते, कुछ कारण है या टाइम नहीं मिला, तो एटलीस्ट अंदर से तैयारी करके रखे कि जैसे ही वो डीएनए जो कि अभी अभी हमारे नियर बाई सेल को इन्फेक्ट करके आया है, डिसइंटीग्रेट करके आया है, हमें भी ऐसे ही कर देगा अगले 2-4 दिन, हफ्ते भर के बाद, प्रोवाइडेड अगर अंदर आ गया, अंदर आके अपना जीनोम इंटीग्रिटी तो करेगा, वो फॉरेन डीएनए तो पहले से अंदर अपने चॉपर्स, नाइफ सबके साथ तैयार है, आते से उसको कुतर देंगे। अरे यस और नो, विल चॉप डाउन, इंटीग्रिटी नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली डिफेंस ही थी कि अपनी जीनोम की इंटीग्रिटी को बिगड़ने ना देना। आई एम कमिंग टू तो नेचर में आज बायोटेक्नोलॉजी जिस मेन एस्पेक्ट, लास्ट डे व्हेन आई हैव स्टार्टेड अबाउट बायोटेक, मैंने कहा था 2 प्राइम डिस्कवरी हैज लेड टू द फाउंडेशन ऑफ एंड बिगिनिंग ऑफ बायोटेक वर्ल्ड, दैट इज प्लाज्मिड्स एज अ वेक्टर डीएनए एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वेक्टर्स में प्लाज्मिड की बात कर ही लेंगे। फिलहाल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे पहुंचने से पहले, कौन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? एक तरह के काटने वाले एंजाइम, कैसे काटते हैं, किस तरह से वो उस काम को अंजाम देते हैं, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन नेचर में, इंसान ने इसको बनाया नहीं है, वो नेचर भी मौजूद है, हमने उसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करके आज केमिकल सीजर, मॉलिक्यूलर स्कैल्प, बायोलॉजिकल नाइफ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, टू कंस्ट्रक्ट एंड कंडक्ट द साइंस ऑफ टेलरिंग। साइंस ऑफ, हमारे पास ऐसे औजार आ गए हैं, कैंची और सब नाइफ, जिससे हम इस तरह की डिजाइनिंग, जैसे ड्रेस डिजाइनिंग होती है वैसे जीनोम की डिजाइनिंग, किसकी डिजाइनिंग? एज पर अवर डिजायर एंड विल, कमिंग बैक टू द कंसेप्ट्स ऑफ डेफिनेशन जो बायोटेक बोलता है। तो नेचर में तो हर सेल के पास, हमारे पास भी है, प्रोकैरियोट सब में है ये, एट सेल लेवल, कि कुछ जिनमें एबिलिटी है टू न्यूक्लिक एसिड चेन को कट कर देना। अब वो कट किस किस उद्देश्य से वो खुद करते हैं, ये डिस्कशन ठीक वैसा ही है जैसा कि आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन पढ़ते हुए सुनोगे। आज आपने कुछ समय पहले ड्रग्स पढ़ा। ड्रग्स हम आज जानते हैं कि प्लांट के वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए एक तरह का ट्रीटमेंट सोर्स है, लेकिन नेचर ने उन प्लांट्स को वो प्रोडक्ट क्यों दिया था? ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया था। प्राइमरीली उनको वो प्रोडक्ट एल्कलॉइड इसलिए बनाते हैं, वो उनको समय समय पे सिक्रीट करके, स्प्रेड करके अपने आप को इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट पे प्रिडेशन से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? वो तो इंसान ने अपने डिस्कवरी और क्वेस्ट के चलते हुए धीरे 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 ये बात सामने आए कि दे हैव द ट्रीटिंग एजेंट्स ऑल्सो, मतलब किसी बीमारी का उपचार के अभी वो एक सोर्स है, हेंस वी कॉल देम एज ड्रग। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? वैसे ही जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप पढ़ने जा रहे हैं वो किसी बैक्टीरिया या हमारे अंदर भी जो होते हैं वो होते क्यों हैं? नेचर को थोड़ी पता था कि इंसान एक दिन इसका इस्तेमाल अपने किसी मैनिपुलेटेड वर्क के लिए करेगा। जैसे आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में पढ़ा था, एमएचसी प्रोटीन नेचर ने ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए थोड़ी दिया था, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, कि 6 महीने की उम्र से जब इम्यून सिस्टम बनना चालू होगा उससे पहले शरीर के सारे सेल्स 15-17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक दूसरे की पहचान कर लें कि हम सब एक ही जीनोटिपिक शरीर के सेल्स हैं, भले ही हमारी मॉर्फोलॉजी सबका अलग अलग है। ये ठीक वैसा ही है जैसे समाज अलग अलग तरह के कास्ट, क्रीड लोगों से चल रहा है, मैनेज हो रहा है। एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग देयर ओन कस्टमाइज्ड एक्टिविटी, सेरेमनीज with a social harmony without disturbing each other, क्योंकि we all are under one constitutional rule, yes or no, parliamentary rules as a citizen। तो वैसे ही एक ही शरीर के 221 तरह के सेल्स, कहां न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कहां मसल्स का नेचर अलग। अब हर सेल अगर लड़ ले आपस में एक दूसरे को रिजेक्ट करके कि नहीं नहीं मैं ज्यादा एनर्जी लूंगा, तुम मत करो, मुझे धड़कने दो अभी लंग्स, तुम चुपचाप बैठो, सोचो ना अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा आपस में।
बट ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स अ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द बॉडी, जिसको हम बायोलॉजिकली कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और उस लॉ एंड ऑर्डर को अल्टीमेट इंटीग्रेट कौन रखता है? हमारा डिफेंस सिस्टम, बाय मेंटेनिंग दैट हेल्थ। क्योंकि वी आर इफ इन स्टेट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग मींस वी आर इन हेल्दी स्टेट। और कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, नुकसान पहुंचाने का, देर इज अ बैकअप सिस्टम, इम्यून सिस्टम टू कीप अ चेक, ऐसे किसी सिचुएशन को रिबाउंस करके नॉर्मल पे ले आना। यस और नो? तो हर चैप्टर के यही बेसिक कंसेप्ट्स रहे हैं, पढ़ाया गया उस तरह से। फिलहाल बहुत ही लोअर लेवल पे जाके यही एक बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है एक्चुअली। ये इम्यून सिस्टम ही तो है, क्योंकि जो कुछ भी है उसके सेल का, उसका जीनोम ही तो है, शरीर ही तो एक सेल का बना हुआ है। इवन हम हमारे पूरे इतने ह्यूज बॉडी की बात करें, लाइक एन इंजन, मेगा इंजन, ह्यूज इंजन, या फिर एकदम बेसिक लेवल पे चले जाए, मिनिएचर इंजन, हर एक सेल एक इंजन है। याद करिए जब स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ा था आपने, है ना, स्ट्रेटेड मसल, सिलिंड्रिकल शेप, इट्स अ इंजन, बायोलॉजिकल इंजन। सिलेंडर है, अंदर पिस्टन्स की तरह मायोफाइब्रिल्स अरेंज है, एंड द थ्रश आउट मूविंग दैट, ब्रिंगिंग दैट एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी वही पुश और पुल जो वो अंदर वो कर रहा है विथ इट्स वर्किंग यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। इट इज अ वर्क डन, और वो वर्क डन एनर्जी चाहिए। एक किसी भी क्या बोलते हैं, मशीन का इंजन कंबशन से अपना एनर्जी, जिसमें फ्यूल गिरता है, ऑयल गिरता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, पिस्टन अंदर ऐसे ही चलते हैं ना, और वो फ्यूल क्या होता है? ऑक्सीजन जैसे मिलता है, कंबशन। तो हमारे उस मिनिएचर इंजन, जिसको मैंने एक सेल कहा, स्टेटेड सेल, इज एबल टू परफॉर्म अ स्पेशल वर्क डन फॉर द बॉडी कॉल्ड फोर्स, कॉल्ड इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अब उसको जो एनर्जी मिलेगा वो कंबशन से नहीं, एक खास स्पेशल कंबशन इन अ लिविंग बॉडी कॉल्ड रेस्पिरेशन, कॉल्ड। वो अलग बात है कि सेल्स के पास तीन सोर्स है, डी, दैट इज योर डीफॉस्फोराइजेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक, तीन एनर्जी सोर्स है। कौन सा कब चूज होगा, ये स्टेट ऑफ बॉडी एक्शन पे डिपेंड करता है। अचानक से एक अलग कंसेप्ट शुरू हो रहा है। तो जिस इम्यूनिटी की बात अब से कुछ समय पहले हम पूरे शरीर के बारे में कर रहे थे, वो एक एक सेल भी अपना इम्यूनिटी करता है बाय रिलीजिंग सम और आइदर साइटोकाइंस, क्या रिलीज करके। तो व्हाट अबाउट द बैक्टीरियल वर्ल्ड? ये उनका, ये एंजाइम्स, ये न्यूक्लियस, उनका इम्यून मैकेनिज्म है, क्या है? तो दे आर प्रेजेंट एट सेलुलर जीनोम इंटीग्रिटी, और फॉरेन डीएनए इंटीग्रेशन होने के जो चांसेस हैं, तो उसको भी, है ना, डिसइंटीग्रेट कर देना। बाय रेस्ट्रिक्शन, डिसइंटीग्रेट बाय रेस्ट्रिक्शन। Nucleases, such enzymes, cutting enzymes, cleaving enzymes are of two types, exo and endo। और दोनों के लिए दो तरह के एंजाइम मौजूद है। एक्सो न्यूक्लियस वर्क फॉर डीएनए रिपेयर सिस्टम। अब देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से उनका नेचर ऑफ वर्क मैं यहां डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं।
ठीक है, यहां पर देखिए, एक्सोन्यूक्लियस हैव द एबिलिटी टू अटैक। मैं लिखवा नहीं रहा हूं ये कंटेंट, और सिर्फ डायग्राम से आपको याद रखना है, क्योंकि डायग्राम बेस ऐसा स्कैन करके आ जाए और कहेंगे कि विच टाइप ऑफ न्यूक्लियस एक्टिविटी इट इज एंड फॉर व्हाट, मतलब वो क्या कर रहा है। तो जब एक्सोन्यूक्लियस काम करता है, इट अटैक ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑन द डीएनए डुप्लेक्स फ्रॉम द आइदर टर्मिनल, फ्रॉम द, यहां एक तरफ ही दिखा है, या इस तरफ से अटैक हो सकता था, इस तरफ से, डिपेंड करता है रिपेयर कहां से करना है, गलती कहां हुई है। इसलिए सिंगल, एक एक न्यूक्लियोटाइड एक एंड से तोड़ता हुआ। तो मेरे काम की बात क्या है, मतलब मैं क्यों ये सब बता रहा हूं, इट इज नॉट टू बी, क्योंकि मैं एक्चुअल कोर जेनेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मुझे तो कंसेप्ट बता के बायोटेक पे आना है। सबको आ रही मेरी बात समझ में? इट इज नॉट टू बी यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही बात है, क्योंकि हमें तो टारगेट ओरिएंटेड एफडीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस, एक एक बेस तोड़ के कौन सा एफडीएनए मिल जाएगा हमें। आया लॉजिक समझ में? मतलब लेट बी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं इनका भी इस्तेमाल होता है, मैं उस पर क्यों जाऊं। हमें तो कोर्स के अकॉर्डिंगली कल ऑप्शंस में लिखा आएगा, विच क्लीविंग एंजाइम कैन बी यूटिलाइज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू ऑब्टेन एफडीएनए। अब 4 ऑप्शंस लिखे होंगे। यूज ऑफ एक्सोन्यूक्लियस कैन गिव अस एफडीएनए, गलत। अब आ रहा है समझ में? मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, और अक्सर मैं आपको कहता हूं कि क्लास में किसी भी टॉपिक को पढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन उसको समझने के बाद क्वेश्चन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो यही तो थोड़ा सा डेवलप करने वाली बात है। हर चीज एकदम नहीं डिस्प्ले हो सकता, हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इतने देर से ये जो बता रहा हूं, ये भी तो एक क्वेश्चन है। आई विल कम टू दैट टॉपिक। एनसीईआरटी स्पेशल करके स्मिथ, नेथन्स, अर्बर तीनों ने मिलकर हिस्टोरिकली कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया, कैसे कंट्रीब्यूट किया, एंड फॉर दैट दे हैव गॉट द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1978। ये जीके बेस्ड हिस्टोरिकल क्वेश्चन। लेकिन उसमें जो बात सामने आएगी वो है रेस्ट्रिक्शन सिस्टम। क्या नाम आएगा? इज द इम्यून सिस्टम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, स्पेशली बैक्टीरिया, एंड दे यूजेस अ 2 सेट ऑफ एंजाइम्स, है ना। एनसीईआरटी में आज ही जाके अगर पढ़ के आए हो, जहां पर हेडिंग लिखा है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करके, उसका पहला पैराग्राफ यही तो लिखा है, फॉर्मर लेटर करके। क्या लिखा है? एंजाइम्स के नाम नहीं बताए। तो फॉर्मर का काम है मिथाइल ग्रुप जोड़ देना, लेटर का काम है बाद में डीएनए पे अटैक कर देना। तो व्हाट डज इट मीन? कौन है फॉर्मर, कौन है लेटर, कौन से वो 2 एंजाइम्स है? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। लेकिन उससे पहले सबको आया समझ में? एवरीवन? जबकि एंडोन्यूक्लियस जो कि रिस्ट्रिक्शन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ फॉरेन डीएनए की जो बात हो रही है, जिससे कि ये सब खत्म हो जाएगा और वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, या कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल जो आके डिस्टर्ब कर सकता है इंटीग्रिटी को, ये खुद 2 तरह से काम करते हैं। स्पेसिफिक, ये पहले अनस्पेसिफिक बता दें। और दूसरा है स्पेसिफिक। Again, you could see single strand attack on the duplex unknowingly without any recognition or specific point, hence called unspecific. एक ही स्ट्रैंड पे अटैक हो रहा है ना, इन बिटवीन, नॉट एट द टर्मिनल, इन बिटवीन, इन द लेंथ ऑफ द लेंथ। किसी को कोई डाउट? देखो मैं स्टेटमेंट लिखवा नहीं रहा हूं, डायग्राम देख के याद रहना चाहिए।
जबकि खुद स्पेसिफिक दो तरह के होते हैं फिर। When the cut is on both the strand of the duplex at same axis, at in between the length at same axis, whereas on both the strand of the duplex at two different axes, at two different axes. Resultant blunt end और sticky कोहेसिव या फिर फ्लैंकिंग एंड्स बनेंगे, है ना। ऐसा कट गए तो ये फ्लैंकिंग एंड्स बनेंगे विथ ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। So we are now interested in which cleaving enzyme as a source of chemical seizure in biotechnological work. It is first of all endonucleases as cleaving enzymes with specific endonucleases to be utilized. और वो खुद तीन तरह के होते हैं, खुद टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 made up of 3 subunits, made up of single unit, made up of 2 subunits. And requires ATP, magnesium ion and S-adenosyl methionine. इनके प्रेजेंस में ये काम करते हैं, जबकि ओनली प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, whereas it also requires ATP, magnesium ion and
एस एडिनोसिल, मिथायोनिन नहीं, बस एस एडिनोसिल कंपाउंड, मिथायोनिन के साथ नहीं। only recognizes the restriction site, और यहां भी सेम एज टाइप 1, मतलब रिकॉग्नाइज ही करता है। नाउ ओवर हियर, this enzyme recognizes as well as make a cut of restriction sites, एंड तो एक तो एनर्जी एटीपी नहीं चाहिए, है ना, सिंगल यूनिटेड डीनेचुरेशन कम होगा, इनमें डीनेचुरेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा चाहिए, एंड दीज आर मेकिंग द थिंग टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, डॉन्टिंग प्रोसेस। और सबसे खास बात है कट रिकॉग्नाइज करना नहीं, कट भी तो करना है, जो सिर्फ यही करता है। तो इट इज द type of RE to be used in genetic engineering। तो 4 ऑप्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड एक्सोन्यूक्लियस, या फिर एक्सोन्यूक्लियस, अनस्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस, टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस। अब आंसर क्या होगा? टाइप, स्पेसिफिक भी नहीं, स्पेसिफिक में भी टाइप 2। 4 ऑप्शन है ना, एक्सो, अनस्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस, टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस। आंसर क्या होगा? आ गया सबको समझ में? एवरीवन? What is restriction system? It is a different system of prokaryotes and simply includes, comprises of some group of enzymes what we have earlier introduced called nucleases, cleaving enzymes. अब उनमें से किस को वो इस्तेमाल कर लेगा ये करने के लिए? That comprises restriction system made up of those two components. What they are? One is the modifier यानी modification system, और उसका दूसरा कंपोनेंट है जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन सिस्टम।
Modification system comprises of, yeah, represented by methylase enzyme. What enzyme? और ये है restriction enzymes. Its function is to add methyl group. ये है वो फॉर्मर एंजाइम प्रोडक्ट फैक्टर जिसका काम है टू ऐड मिथाइल ग्रुप. किस में और क्यों देखते हैं. और इसका काम है टू चॉप डाउन द डीएनए स्ट्रेच. तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट कि सपोज ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा उसका जेनेटिक मटेरियल, एंड सो कॉल्ड एक बैक्टीरियोफेज ये रहा उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर, एंड सपोज टू अटैक the bacterial cell by simply inserting its genetic material. लेकिन उसके जीनोम में कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, और इसके पास वो एंजाइम है अपने आप को बचाने के लिए, जो उन पर अटैक करेंगे तो ये कट डाउन हो जाएंगे. आया समझ में एवरीवन? लेकिन द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो डिफेंडर है वो खुद ही ऑफेंडर नहीं बन जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं जिनकी बात कर रहा हूं ऐसे रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस तो इसके भी जीनोम में होंगे ना. तो ये ठीक वैसा ही है जैसे डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ते हुए ऑल द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सीरीज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन एब्सेंस ऑफ द सबस्ट्रेट. किसी एक दिन आप एक समय आपने एक टाइम मील नहीं लिया, लेकिन समय से एंजाइम्स बने और सबस्ट्रेट मिला नहीं, फूड आपने लिया नहीं, यस और नो? वो एंजाइम्स हमारे अंडरलाइंग लेयर्स को भी तो डिस्टर्ब करके खत्म कर सकते हैं. व्हाई नॉट? क्योंकि जबकि वो इतने कॉम्प्लेक्स डाइजेशन करते हैं तो व्हाई नॉट आवर ओन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यस और नो? क्योंकि हमारा भी शरीर उससे बना है, बट थैंक्स टू म्यूकस मेम्ब्रेन प्राइमरीली, फॉलोड बाय एक वो दूसरा कि हमारे सारे एंजाइम स्पेशली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कैसे रिलीज होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म. और जो एक्टिव फॉर्म में भी रिलीज होते हैं दे नीड सर्टेन टेम्परेचर एंड पीएच. जब तक वो अटेन नहीं होगा तब तक एंजाइम्स अपना फुल फ्लेज एक्शन नहीं करते हैं. हेंस वी गेट रिड ऑफ, हम बच जाते हैं फ्रॉम गेटिंग सेल्फ डाइजेस्टेड बाय गेटिंग. सबको आ रहा है समझ में एवरीवन? तो सेम डू विथ द सिस्टम. ये डिफेंडर है, हाँ ऑफेंडर बन सकता है. ये ठीक वैसी घटना है जो हमारा इम्यून सिस्टम, याद आ रहा है सबको कंसेप्ट, बिल्कुल अटैक करता है, फुल फ्लेज करता है, लेकिन शरीर को तैयार भी करता है सेल्फ टॉलरेंस. क्या देकर? सप्रेशन, कॉर्टिकॉइड, इम्यूनो सप्रेशन. लेकिन अगर वो बैकअप ना काम करे हमें ऑटो इम्यूनिटी झेलना पड़ेगा. क्या? तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जिन बातों को भी आप हायर लेवल पे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोअर लेवल्स पे नहीं है, तरीके अलग अलग है, लेकिन कंसेप्ट हमेशा एक रहेगा. एम उसको अचीव करने का एक ही रहेगा. एग्जीक्यूट करने के तरीके अलग हो सकते हैं. तो आज आप एक तरह से इम्यून मैकेनिज्म सिस्टम ऑफ प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हो, और उनको अपने आप को कुछ नहीं बचाना. शरीर में है ही क्या? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, वो तो ऐसे ही अटैक होकर खत्म होने वाला है. मेन है उसका जेनेटिक मटेरियल, वो ठीक रहा बाकी सब वो रिटेन कर लेगा. यस और नो? क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट मेथड से कोई भी यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस करता है सेल डिवीजन, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल. अरे कुछ याद आ रहा है? चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो इतना रीजनरेशन पावर है कि वो तो सबसे सिंपल रिप्रोडक्शन शो करते, सेल डिवाइड कर जाना. इससे पहले कि उनमें कुछ आए, दिक्कत हो, उससे पहले वो दे नेवर फेस सेनेसेंस, दे नेवर फेस. तो तुरंत वो मिथाइलेज से पहले अपने ये एरियाज को मास्किंग क्या कर लेते हैं? लिखने का तरीका, मास्किंग बाय
मिथाइल ग्रुप, जिससे कि वो एंजाइम इन पर अटैक नहीं कर पाते, लेकिन इन पर अटैक कर देंगे। और इन पर जब अटैक कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या होगा इनका? That's your restriction system made up of two compounds. The former add methyl group and the later attack the DNA stretch. वही आधी बात कर दी। 1963 में इकोलाई में ऐसा सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट पाया गया जो कि बैक्टीरियल अटैक या सॉरी वायरल अटैक को जो है डिस्ट्रॉय डेमोलिश करने का तरीका, ऐसे करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की इतिहास मतलब हिस्ट्री शुरू किया एनसीईआरटी ने। बट मैं उम्मीद करता हूं आपको आया समझ में। तो थैंक्स टू द डिस्कवरी ऑफ आर्बर, उन्होंने ये सिस्टम पता लगाया। सबसे पहला एंजाइम स्मिथ हिंड D2 डिस्कवर किया, और जो है नेथन्स ने इसका इस्तेमाल करना बताया कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हम। दैट लॉजिक ऑफ यूजिंग रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन लाइगेशन स्टेप जो है उन्होंने बताया। तो तीनों को कोलैबोरेशन में एक साथ 1978 में ऑनर किया गया बाय ऑफरिंग देम व्हाट? नोबेल प्राइज। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग था। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां से आप हेडिंग देके रखें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब आप हेडिंग दीजिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहां से मैं नेक्स्ट क्लास हाफ एन आवर में एंजाइम वेक्टर्स कवर करके टेक्निक्स, मतलब नेक्स्ट क्लास तक पूरा टेक्निक तक हो चुका होगा, पीसीआर वीसीआर। तो वेडनेसडे को जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, और वेडनेसडे को आप लोगों को एक शीट मिलेगा जिसमें सारे बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस 4 कैटेगरी में कंटेंट्स लिखे हुए हैं, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो टेस्ट जो है संडे 26 ऑफ दिस मंथ, ठीक है। टॉपिक आर एनिमल ब्रीडिंग, ह्यूमन हेल्थ डिजीज कंप्लीट एंड बायोटेक चैप्टर 1 जो कंप्लीट हो चुका होगा। ये वेडनेसडे कंप्लीट होगा, क्योंकि बायोरिएक्टर्स और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब बायोरिएक्टर ऐसा थोड़ी किसी मुंह जबानी बोल दूंगा 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के कल्चर, खत्म। पूरा डायग्राम बना के दोनों में कल्चर कैसे सेट होता है ग्राफिकली समझाते हुए जो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबको आया समझ में? एवरीवन?